Today is the sixth class of my judicial preparation coaching classes, which I have already started say last week. Since then, I'm regularly conducting classes regarding the preparation. Criminal law one, we have already completed constitutional law, and I have also uploaded on my LMS Google Classroom constitutional law multiple choice questions and notes, whatever material subject wise I uploading, and I will upload as well whatever the course we will complete. So today we are going to continue where we have stopped our last class, because we have discussed basic knowledge regarding the Pakistan Penal Code. So I'm going to share today's slides. First of all, this is the basic structure of Pakistan Penal Code. So, this is the basic structure of Pakistan Penal Code. First part of this basic structure, introductory provisions, which consists of 3 chapters. This is the basic structure of Pakistan Penal Code, which has been divided in 3 parts. First part contains introductory provision, and second part general exceptions, and third part, which actually very much important, which carries the offenses. What is in the first part? Introductory provisions, which consists of 3 chapters. Initial first chapter, which consists 5 sections, which give us introduction, and second chapter, which consists of start from section 6 to section 52, general explanations. And in that part, there are certain definitions which are very much important: fraudulently and dishonestly. And in that scheme of provisions, there is a section which is section 34, which I'm going to discuss later on, which is very much important. Kindly. So in second chapter, there are general explanations. In that part, there are certain definitions which are very much important. Likewise, wrongful gain, wrongful loss, which we have discussed in last class. And in that scheme of sections, there's one section which is very much important, not for first phase of the exam, but in second phase of the exam. That is the section 34, which give us the descriptions regarding the common intention. And the chapter number 3, which is very, very much important, which carries sections which start from 53 to 75, which are punishments, kinds of punishments, what kinds of punishments, and their detail. And that chapter is very much important. I will recommend you study at detail in those sections, because this kind of section, this scheme of section, repeatedly the question will come in your exams, that is subjective, whether objective, and whether interview. So you have to clear regarding these scheme of sections, provisions, kind of punishments, and their detailing. And next chapter, chapter number 4, that is the general exceptions. So there are certain acts. Every wrongful act is the crime. What are the wrongful acts? To kill another person, and to harm the reputation of another person. So if this general exceptions not carried in Pakistan Penal Code, the every act, if you will do to protect your property and protect yourself, will become crime. Likewise, if judges give the punishment of death penalty, if law enforcement agencies conducting any operation and they will kill any criminal, that will become also wrongful act. So give them exception. This scheme of chapter including Pakistan Penal Code, which start from the section 76 to section 106. Those are the general exceptions. Those general exception kind of 6. There are 6 kind of general exception. 6 किस्म की general exceptions हैं जो exempted हैं. If a person will do those acts which will come in the ambit of general exception, will not actually will be the offense.
तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा अगर जनरल एक्सेप्शन। जिस तरह कोई जज किसी को फांसी की सजा देगा तो वो अगर फांसी से किसी की फांसी से क्योंकि डेथ पेनल्टी से किसी की डेथ हो जाती है ह्यूमन बीइंग की, दैट विल नॉट मर्डर, बिकॉज इफ परफॉर्मिंग एनी एक्ट, इफ दैट इज अ जुडिशियल एक्ट, दैट इज नॉट क्राइम। तो उसके अलावा फिर अगर कोई इंटॉक्सिकेंट है, इनसेन है, और ड्यू टू सर्टेन मेंटल डिसऑर्डर अगर कोई एक्ट होता है तो वो भी, क्योंकि क्राइम क्रिमिनल लॉ में, क्योंकि इन मीडिया वालियां, अगर आप क्राइम की हिस्ट्री देखें तो कोई भी बंदा हो या इंसान हो या जानवर हो, किसी को नुकसान पहुंचाता था तो उसको क्राइम कहा जाता था, और उस क्राइम को फिर कैटेगराइज नहीं किया गया था वेदर, अच्छा उसमें वेदर आपका मेंटल एलिमेंट हो या आपकी कोई क्राइम आप किसी खता से हो जाता है, आप कोई काम कर रहे थे तो किसी की बिल्डिंग गिर गई, या आप कोई काम परफॉर्म कर रहे थे तो उसकी कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं थी, कोई कैटेगरी नहीं थी। हर अगर किसी को आपको नुकसान पहुंचाए तो वो क्राइम होता था, उसकी एक ही सजा होती थी। तो सजाओं की भी कोई उस वक्त दौर में जो है कोई उसको काइंड्स नहीं बताई गई थी। अगर आप किसी को थप्पड़ मारे या कोई मत, सजा उसकी एक ही होती थी। लेकिन जिस तरह सोसाइटी फ्लोरिश हुई तो इसी तरह एक क्राइम की डेफिनेशन और उसकी कैटेगरीज भी जो है उसको बनाया गया। और इसी तरह पनिशमेंट, जितना सीवियर क्राइम होगा उतनी सीवियर पनिशमेंट होगी, जितना लेस सीवियर क्राइम होगा उतनी पनिशमेंट्स कम होगी। तो पनिशमेंट्स की भी किस्म, फिर पनिशमेंट्स की थ्योरीज आ गई। देयर आर लॉट ऑफ थ्योरीज, जो सोसाइटी जिस तरह डेवलप हुई है तो थ्योरीज भी डेवलप हुई है। तो डिटरेंस थ्योरी है, रिट्रीब्यूटिव थ्योरी है, इनकार्सरेशन थ्योरी है, और जो है रिहेबिलिटेशन थ्योरीज है। तो इसी तरह बहुत सारी क्रिमिनल लॉ में बहुत सारी थ्योरीज हैं कि हाउ टू ट्रीट द क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स को हम किस तरह ट्रीट करें, तो उसके हिसाब से उस थ्योरी को अप्लाई करें। बहुत सारे मुआशरों में रिट्रीब्यूटिव थ्योरी में बहुत सख्त किस्म की पनिशमेंट्स होती हैं क्रिमिनल्स को। किस तरह जो डेवलप सोसाइटीज है वो क्रिमिनल्स को इंसान समझती है, लेकिन कुछ सोसाइटी में अगर कोई क्राइम करता है वो उनके साथ आप ह्यूमनली जो है ट्रीट नहीं करें, तो दैट इज रिट्रीब्यूटिव डिटरेंस थ्योरी। उनको डिटर करें, उनको इतने कानून इतने सख्त बनाएं कि कोई पर्सन विल नॉट इवन थिंक अबाउट दैट क्राइम। तो दैट इज द रिट्रीब्यूटिव एंड डिटरेंस थ्योरी। तो उस वक्त कोई कैटेगरी नहीं होती। अगर आप कोई आपसे कोई एक्ट, आपका इंटेंशन नहीं है किसी को नुकसान पहुंचाने का, बट ड्यू टू सर्टेन सर्कमटेंसेस जो है वो एक्ट हो जाता है, किसी को आपने नुकसान पहुंचा दिया। लेकिन अगर कोई आप पे हमला, आपको सामने बंदूक तान के बैठा हुआ है और आपको गोली मारे और उस गोली बचने के लिए आपने कोई चीज मार दी, तो वो आपने अपने प्रोटेक्शन में अमल किया। that was the circumstances, that was the certain influences you have done that thing। so पहले इन चीजों को कैटेगराइज नहीं किया जाता था। तो 6 किस्म की जो है दैट इज जनरल एक्सेप्शंस हैं पाकिस्तान पेनल कोड में, अगर वो उस एम्बिट में आती है तो वो क्राइम नहीं है। तो उसके अलावा फिर पेनल प्रोविजंस है। पेनल प्रोविजंस में ऑफेंसेस जो हैं वो चैप्टर, फिर आप नीचे जब आएंगे चैप्टर 5 to 23, तो उसमें सेक्शन 107 से लेके सेक्शन 511 तक उसको ऑफेंसेस को दो किस्म के कंडीशन में कैटेगराइज किया। एक होता है इनकम्प्लीट ऑफेंस, दूसरा है कंप्लीट ऑफेंस। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्राइम की 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, इंटेंशन हो, एक्ट हो, फिजिकल पार्टिसिपेशन हो, और फिर उसके बाद रिजल्ट हो। लेकिन इनकम्प्लीट ऑफेंस, हाउ इट इज बिकम ऑफेंस? ऑफेंस के लिए लाजमी है कि वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप किसी को कत्ल करने जा रहे हैं तो मस्ट बी डन कि आपने किसी का कत्ल किया, और कत्ल किस तरह किया कि उसको गोली मारी और उसकी उससे डेथ वाकई हो जाए, दैट मींस इट इज अ मर्डर। मर्डर की डेफिनेशन है किसको मारना। तो अगर ये है कंप्लीट ऑफेंस। अब इनकम्प्लीट ऑफेंसेस, what are the incomplete offenses? Those are the chapter 5, 5A, 23 and section 122, 126. Although you have attempted for any crime, but that crimes are not completed, those are the attempted crimes। जिस तरह एक ऑफेंस ऐसा है जो कंप्लीट तो हो जाता है लेकिन वो ऑफेंस नहीं है, लेकिन अगर वो इनकम्प्लीट है तो वो ऑफेंस है। जिस तरह सुसाइड है, if you commit suicide it is not offense, but if you attempt, अगर वो suicide attempt बन गई, that is the offense। और इसी तरह मर्डर की अटेम्प्ट टू मर्डर भी एक क्राइम है।
और अटेम्प्ट टू रेप भी एक क्राइम है। तो जिसमें अटेम्प्ट लफ्ज इस्तेमाल हो, दैट इज द मींस यू हैव अटेम्प्टेड। कुछ ऐसे ऑफेंस हैं जिस तरह सीवियर काइंड ऑफ ऑफेंस है, इफ यू अटेम्प्ट दोस ऑफेंस दोस विल आल्सो बिकम ऑफेंस। तो इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट ऑफेंसेस। और कंप्लीट ऑफेंसेस में भी दो कैटेगरी हैं। अब जब लास्ट आप देखें, जब चार्ट में आप नीचे आएंगे तो कंप्लीट ऑफेंसेस में भी दो किस्म की दो काइंड्स हैं। एक ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, गवर्नमेंट एंड पब्लिक, and those are the chapters 6 to 15, section 122 to 98. And offense against the private person, those are the chapters 16 to 22, section 299 to 500. तो offense against private persons, और उसके बाद और इस कैटेगरी में आल्सो जो offenses जो ह्यूमन बॉडी, और जो offense against not only private person and offense against the property and others property, those are the also crime। वो स्टार्ट होते हैं आपके जो है 403 से लेके 499 आई थिंक 499 तक जितने भी ऑफेंसेस हैं वो ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी हैं। वो लेटर ऑन डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे स्लोली। So that is the simple introduction of Pakistan Penal Code. Pakistan Penal Code में as we know there are 511 sections. Those are divided in chapters and जो है chapters जो है further headings में उसको provide जो है divide किया गया है। So this is the Pakistan Penal Code, उसके ये offenses हैं। तो लास्ट क्लास में फिर इसको हमने डिस्कस किया था। आज जो आई एम गोइंग टू डिस्कस में कुछ सेक्शंस जो है मैंने उसको लेफ्ट कर दिया था कि उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लाइकवाइज के हमने फिर उसके बाद सेक्शन 53 पनिशमेंट्स को हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स, जिसमें किसास, दियत, अरश, दमन, ताजीर, डेथ पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उसके बाद रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट एंड सिंपल इम्प्रिजनमेंट, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड फाइन। दीज आर द 10 काइंड ऑफ जो है पनिशमेंट जो जज किसी भी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ क्राइम वो दे सकता है। दीज आर द पनिशमेंट। इसके अलावा जज अपनी मर्जी से कोई और सजा नहीं देगा। The desire, whims and wishes of the presiding officer, judge and advocate will not apply, but the law will itself, letter and spirit will apply. Whatever the act which is given in the Pakistan Penal Code, as per the kinds of punishment will be given. तो उसके बाद हमने जो कुछ सेक्शंस स्टार्ट हुए थे 66 से लेके 72 तक के जो फाइन है, फाइन जो है वो किस तरह दी जाती है। अच्छा, फाइन की जो आप उसी अगर उस सेक्शंस को आप पढ़ेंगे तो फाइन एक इसका चार्ट जो है फाइन का वो गिवन है उसमें। अगर या तो जज जो है किसी भी क्रिमिनल को सजा देगा जो उस एक्ट को, जितना कत्ल है, कत्ल की मुख्तलिफ सजाएं हैं। कत्ल की सजा फांसी भी है, कत्ल की सजा जो है किसास के बाद वो दियत भी है, जिसको हम कहते हैं किसास में किसास एक्चुअली इसको हम जो इसका एक वर्ड यूज होता है बदले बदले सुलह, और उसके अलावा किसास में जो है इसको हम ब्लड मनी भी कहते हैं। ब्लड मनी का मतलब है दियत। अच्छा दियत के बाद अगर जिस तरह मर्डर है, कत्ल है, उसकी डेथ पेनल्टी भी है, किसास में बदले सुलह भी है, और उसके बाद दियत भी है, और उसके अलावा उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है। अगर अटेम्प्टेड जो मर्डर है वो तो 324 में डिफाइन है, तो उसकी भी पनिशमेंट है, उसके साथ फाइन है, उसकी जो भी सजा है, या तो वो जज जो है उसको वो सजा देगा इम्प्रिजनमेंट की, या फाइन देगा, या दोनों एक साथ। अगर डिपेंड करता है सीवियरिटी ऑफ द ऑफेंस। अगर कोई सजा है इम्प्रिजनमेंट की, उसके साथ फाइन है, अगर जो ऑफेंडर है उसने सजा काट ली 10 साल और फाइन नहीं भरी, तो डिफॉल्ट ऑफ फाइन, तो उसको फिर क्या होगा। तो अगर उसने डिफॉल्ट किया है फाइन में, तो देयर आफ्टर 1/4 जो उसकी जो सजा है उसकी 1/4 फर्दर वो उसकी सजा जो है उसको मिलेगी। ये तो हो गई अगर सजा के साथ फाइन है। अगर किसी ऑफेंडर को सिर्फ फाइन, कोर्ट ने सिर्फ फाइन जो है वो इम्पोज की है और वो फाइन नहीं दे रहा, तो फिर उसके साथ क्या होगा।
दैट इज द एक्चुअली टेक्निकल क्वेश्चन। ओनली जज ने जो है इसको सिर्फ जो है उसके सजा के मुताबिक, और जज की अपनी जुरिस्डिक्शन और कानून ने जो उस जज का एक लिमिट रखी है कि जज जो है कौन सी क्लास का जज कितनी फाइन लगा सकता है, और उसने फाइन उस पर अप्लाई की, उसने फाइन उस कल्प्रिट को ऑफेंडर को फाइन, लेकिन वो फाइन नहीं भर रहा, इज अ डिफॉल्ट ऑफ फाइन, देन व्हाट विल हैपन? तो वो फिर सजा का एक अगर उसकी सजा 1 मंथ है, 6 मंथ है या 1 साल है, तो उसके हिसाब से फाइन जो है 50 रुपी, 100 रुपी, 200 रुपी से लेके 1000 तक एक चार्ट है, वो सेक्शंस में गिवन है, उसके मुताबिक वो फिर वो सजा काटेगा। अगर सजा 1 महीना है तो 50 रुपी, लेकिन ये 50 रुपी अभी तक इंक्रीज नहीं हुए, क्योंकि जिस तरह ये जब पाकिस्तान पेनल कोड बना था तब से ही ये चार्ट चला आ रहा है, इसको जो है इसको बढ़ाया नहीं गया तब से लेके। ये तो हो गया फाइन, डिफॉल्ट ऑफ फाइन। अगर कोई फाइन डिफॉल्ट करता है तो उसका बाद क्या होगा, उसका प्रोसीजर क्या है, दैट इज दी। और अब हम आते हैं सोलिटरी कन्फाइनमेंट, जिसको हमने लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस किया। व्हाट इज द सोलिटरी कन्फाइनमेंट? सोलिटरी कन्फाइनमेंट इज दैट, उसको हम कहते हैं काल कोठरी। इम्प्रिजनमेंट के अलावा हर 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 सेंट्रल जेल में एक कन्फाइनमेंट होती है जिसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट कहा जाता है। एक खास किस्म की उसको काल कोठरी कहा जाता है। खास किस्म की जेल बनाई जाती है जिसकी खास किस्म की साइज है, जिसमें कल्प्रिट जो ऑफेंडर होते हैं, सीरियस काइंड ऑफेंडर, जो जेल में जाके प्रॉब्लम जेल के कानून तोड़े अंदर, या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, या अदालत ने उसको कोई सजा दी हो रिगोरियस इम्प्रिजमेंट के साथ जो है सोलिटरी कन्फाइनमेंट, तो उसका चार्ट जो है 74 से 75 जो सेक्शन है पाकिस्तान पेनल कोड उसमें डिफाइंड है। तो जितनी ज्यादा सजा होगी, अब उसकी सोलिटरी कन्फाइनमेंट जो मैक्सिमम होती है 3 मंथ्स होती है, लेकिन 3 मंथ्स किसी को आप कंटिन्यूअसली सोलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रख सकते। तो वो उसका प्रोपोर्शन जो होता है डेज के हिसाब से, उसको अगर किसी को 3 मंथ अगर उसकी सजा 25 ईयर है और 25 ईयर्स के साथ 3 मंथ सोलिटरी कन्फाइनमेंट है, तो उसको साल में कितनी दफा और मंथ्स में कितनी दफा सोलिटरी कन्फाइनमेंट रखा जाएगा, उसका बाकायदा चार्ट है, उसको फॉलो किया जाएगा। और एक लिमिट है 2 या 4 डेज की, 74 में डिफाइन, 75 में टोटल चार्ट दिया गया है। अगर उसको खोल के पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है कि अगर सोलिटरी कन्फाइनमेंट, अगर इतनी सजा है तो उसकी इतनी सोलिटरी कन्फाइनमेंट होगी। अगर 3 मंथ से तो उसको इस हिसाब से वीक में सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाएगा। दैट इज दिस एक तरीके का प्रोसीजर था जो सेक्शन 74 और 75 में डिफाइन है रिगार्डिंग दी सोलिटरी कन्फाइनमेंट। फिर आ जाए आप सोलिटरी कन्फाइनमेंट के बाद आप आज का जो लास्ट टॉपिक है, क्योंकि आज लेट भी हो गए हैं और एक दोस्तों ने कहा कि सर इसको आज आप क्लास को शॉर्ट करके वेट अ मिनट, ये इसको जो है हम ये टॉपिक डिस्कस करके आई विल ओपन द फोरम। तो जो आज का जो लास्ट टॉपिक है सेक्शन 34, जिसको मैं सिंपल थॉरोली जो है मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन देता हूँ। देखें, जो क्राइम है, क्राइम की एक लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी, कोई अगर एक्ट होता है रॉन्गफुल एक्ट जो प्रोहिबिटेड है, जो ऑफेंस है एज पर दी स्टेट कवानी, वो आप एक्ट जो है वो नहीं कर सकते। यू कैन नॉट टू दोज एक्ट, इफ यू विल कमिट दोज एक्ट दैट विल बिकम क्राइम। अब किस तरह तय किया जाए कि ये लायबिलिटी किसके ऊपर है? अगर एक सिंगल इंडिविजुअल ने, किसी ने, एक सीधा सीधा केस होता है, किसी ने वेपन उठाया और किसी के ऊपर फायर कर दिया, तो हमें पता चल जाएगा जो फायर करने वाला है ही इज रेस्पॉन्सिबल, ही इज द कल्प्रिट, ही और शी। अब लेकिन एक मजमा है, उसने किसी ने फायर कर दिया, अब उसमें लायबिलिटी किस तरह इंपोज की जाए? या किसी कंपनी किसी कंपनी जिस तरह आर्टिफिशियल कंपनी है उसके जरिए अगर कोई क्राइम होता है तो उसके ऊपर लायबिलिटी किस तरह इंपोज की जाए? तो इस लायबिलिटी को हम कहते हैं विकोरियस लायबिलिटी। A vicarious liability, that means any act which performed by more than one person। अब मोर देन 1% जो है उस पे स्कीम ऑफ, उसमें फिर कंस्पिरेसी भी आ सकती है, उसमें कुछ इंस्टिगेशन भी आ सकती है, इसमें कुछ एग्रीमेंट्स भी आ सकते हैं। या तो कोई किसी को इंस्टिगेट करे, ए ने बी को इंस्टिगेट किया कि आप सी को जाके डराओ धमकाओ या उसको जख्मी करो। अब बी ने ए के कहने पे जो है किसी को जख्मी किया या किसी को हार्म किया,
नाउ हु विल बी द लायबिलिटी किसके ऊपर आएगी, ए के या बी के ऊपर, क्योंकि बी ने ये एक्ट किया है, कराने वाला ए है, तो इसको हम क्या कहेंगे। तो इसमें इंटेंशन देखा जाएगा कि इसमें इंटेंशन किसका है, और परफॉर्मेंस एक्ट किसने क्या परफॉर्म किया वो देखा जाएगा, और किसको कितनी सजा आएगी। तो इसको हम कहते हैं विकारियस लायबिलिटी। और विकारियस लायबिलिटी के लिए जो पाकिस्तान पिनल कोड में प्रोविजंस हैं वो आप उसको डिटेल में पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल है। सेक्शन 34 है, सेक्शन 149, 148 है। 34 सेक्शन जो है पाकिस्तान पेनल कोड में वो कॉमन इंटेंशन है। सेक्शन 140 और 149 जो है वो एक कॉमन ऑब्जेक्ट है। और उसके अलावा सेक्शन 107 से लेके 109 तक है, इसको हम कहते हैं अबेटमेंट। अबेटमेंट का मतलब है किसी को अबेटमेंट में जो है 3 किस्म के एक्ट आते हैं, किसी को इंस्टिगेट करना, किसी को आइड करना, या किसी की हेल्प लेना। इसका मतलब किसी को उकसाना, मैं आपको उर्दू में बता दूं 3 काइंड्स जो है अबेटमेंट की, किसी को उकसाना, किसी से मदद लेना, या किसी की मदद करना। ये 3 काइंड इंग्रेडिएंट्स हैं किसी की अबेटमेंट। 109 कहता है इफ एनी पर्सन इंस्टिगेट टू एनी पर्सन टू परफॉर्म एनी एक्ट, तो वो भी उसी जो उसने एक्ट किया है तो वो भी उसी तरह उसमें शामिल हो जाएगा, और वो भी उतना ही गिल्टी है जितना उसने एक्ट किया। और उसके अलावा 120A 120B क्रिमिनल कंस्पिरेसी अगेंस्ट द स्टेट, वो भी एक विकारियस लायबिलिटी है, जो है अगर कंस्पिरेसी में जितने भी लोग शामिल होंगे सबके ऊपर सेम लायबिलिटी अप्लाई होगी। और उसके अलावा कुछ और प्रोविजंस हैं, वो आई विल डिस्कस लेटर ऑन के जो है विकारियस लायबिलिटी क्या होती है। मैंने थारोली आपको बता दिया, लेकिन जो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन आई विल डिस्कस इन डिटेल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अबेटमेंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे उसमें फिर, क्योंकि दिस इज अ वेरी टेक्निकल, आप हाउ यू विल आइडेंटिफाई द लायबिलिटी, क्योंकि रोल जो है एफआईआर में रोल भी अगर एक से ज्यादा जो है, अगर आप 34 अगर किसी एफआईआर में सेक्शन, क्योंकि एफआईआर में सेक्शन लगे होते हैं पाकिस्तान पेनल कोड के, और किसी और जो है प्रोबिटेट जितने भी स्टेट के जो पेनल प्रोविजंस हैं, एफआईआर में सिर्फ पेनल प्रोविजंस लगते हैं। अगर सेक्शन 34 हो, आप समझ जाएं कि ये एक से ज्यादा 2 लोग होंगे, 2 से लेकर 5 लोग होंगे। अगर 148 हो तो आप समझ जाएंगे 5 से ज्यादा लोग हैं जितने परफॉर्म एफआईआर में। तो 5 से, अगर ये सेक्शन देख के में पता चल जाता है कि इस एफआईआर में कितने लोग नॉमिनेट हैं, फिर उनका रोल क्या है। और अगर 107 हो तो उसमें देखा जाएगा वो 107 का मतलब है फिजिकली वो लोग वो उस अमल में शामिल नहीं होगा फिजिकली। अगर फिजिकली शामिल नहीं है तो 107। अगर किसी को उसने आइड किया है, उसको रास्ता दिया है, उसको इंस्टिगेट किया है, वो 107 है। और अगर 148 है कॉमन ऑब्जेक्ट है, तो उसमें एक अनलॉफुल असेंबली होगी, गैदरिंग होगी, मजमा होगा, तो 148 लगेगा। और अगर उसके अलावा जो है 134 जो है वो आपका है कॉमन इंटेंशन।